Selection is always a selection. It comes in second, third, or fourth, or fifth. Doesn't matter. जो मैंने किया हर बार एंड उसके बाद से आई नेवर फेल्ड टू क्लियर प्रीलिम्स वाज ओनली टू थिंग्स, कंसोलिडेशन एंड रिवीजन. मैं यहाँ का फाउंडेशन बैच का हूँ 21-22. तो इस क्लासरूम में मैंने बहुत बार बैठा है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली इस कॉर्नर पे, ठीक है, और क्योंकि मैं कॉर्नर पे ही बैठता था और फिर वापस हो जाता था अपनी क्लास से, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी मैंने इसी क्लास में बहुत बार बैठा है. यहीं बैठता था, भाई उधर बैठते थे तो मैं वहाँ बैठता था. वो कॉर्नर फिक्स थी मेरी. सो 2023 मेरा पहला अटेम्प्ट था और फॉर्चुनेटली 2023 मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था. So I knew why I came into civil service. That internal motivation was always there. I didn't rely upon any external factors for that. For interviews especially I'll be very grateful to Next IAS. मैं Next IAS के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड दिपिन सर के जो करंट अफेयर्स क्लासेस हैं, नॉट जस्ट फॉर माय इंटरव्यू प्रेपरेशन बट फॉर मेंस, आई थिंक मैंने GS2 में तो वर्बैटिम दिपिन सर के आंसर्स के नोट्स. Good evening, everyone. So this today's session is going to be the discussion with the toppers. And earlier we planned one batch, but more number of students, some from morning batch students have come. So we have divided in two parts, and we have the 8 toppers today available here. So 4 will be interacting to you, and 4 are interacting in that batch. The purpose of this discussion is to know the strategy of the top rankers, how they have prepared and what was their strategy during their journey. There must be some experiences which they have gained, and that experience may help you to plan your strategy in the upcoming year. Where you are sitting today, many of them were sitting 2 years back or 1 year back in the same place. So from that platform to this platform, this journey, they know best how that journey they have achieved, and they will be sharing. So I will invite one by one to the all 4 top rankers, and this will be a discussion between them and you. और बाद में आप अपने queries भी पूछ सकते हैं, and जो भी आपके मन में doubt हो गए, you can definitely ask. And so I will please invite the toppers. So welcome Subika. Subika Pathak has secured All India rank 37. Congratulations, Subika ji. Sir, आप दे दीजिए. God bless you. She has secured All India rank 37 this year in Civil Service 2024. Please take seat. Then we have the Mr. Sachin. Sachin has secured All India rank 41. Congratulations, Sachin. So Dr. Sachin, his optional is anthropology. Thank you, sir. You want to take from there? सर को कुछ सरप्राइज भी होना चाहिए. Then we have the Mr. Nayab Anjum, classroom foundation batch student, All India rank 292. Sir. Please come. We have Rahul Chaudhary, again GS Foundation batch. Rahul, welcome, 876 rank this year. Just for the sake of information, this year in Next IAS, we have the 7 candidates who have been in top 10, rank 1, 2, 4, 5, 6, 7, and 9, and multiple courses. Some are in the short-term courses, some are in long-term courses. We have mentioned in every case of the result, we have mentioned the corresponding course. In top 20, there are 12. In top 100, there are 56, and in total, out of 1009, result has been declared 624 till now we have confirmed. The inspiring part is GS Foundation and GS Advance. That includes 198, and mains test series includes 230, which includes the mains test series and AIM. So we have the good number of students from the multiple courses,
And the best part, which I believe that in next IAS, there are many students who have done in first attempt. And that getting selection in the first attempt is very inspiring. But selection is always a selection. It comes in second, third, or fourth, or fifth, doesn't matter. You have seen that this year, it was, I think, fifth attempt where the first ranker got. So ultimately, the success matters. So, dear friends, as I told, this will be an interaction from toppers. और ये interaction इस बात के लिए है कि they can share their journey. How they studied, what sources they followed, what was the plan of study, time management कैसे करते थे, exam में क्या challenges आए, so that you can learn from them and you can adopt in your preparation. But definitely एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि every person is unique. Their uniqueness worked for them. Your uniqueness will work for you, but something can be always least common denominator. तो वो तो होता ही है. LCM method तो हम पढ़ते ही हैं. So that always you can learn. So now, without wasting any time, I will hand over the mic to them. One by one, they can share their strategy and journey, and thereafter, you can ask the queries at the end. So this is how the session has been planned. Thank you very much. Now to you. Hello everyone. Am I audible? I'm Shobhika Pathak, and I've secured AIR 37 this year. I'm an engineer by qualification, by graduation. I've done my BTech from NIT Warangal. Post which I worked briefly. I got placed from college, and I worked in the corporate sector with ITC Limited. And after that, while I was working, I decided that UPSC kar lete hain. And I'm already in service. I'm in IRS IT. And now this year, there'll be a change of service. So talking about my journey, sir has asked us to share how it was for us. It's been a fairly long journey and with many ups and downs. In fact, I have failed to clear prelims once by less than 1 mark. तो मैंने वो failure भी देखा है. And these kind of setbacks do somewhere affect you, but then you have to remember, you have to look at the larger picture, and you have to always remember that life is not so unfair also. If you're honest with your preparation, you will get there. So talking about prelims, because it's round the corner, only one thing after having failed once, like I said in prelims, if there was one cheat code, or you can say one strategy, which is not something very unique, but it's rather easiest to be said, but most difficult to be followed. जो मैंने किया हर बार, and उसके बाद से I never failed to clear prelims, was only 2 things: consolidation and revision. So consolidate the material that you're reading so that 1 week before the exam, 1 day before the exam, people generally avoid reading 1 hour before the exam, but I was the kind जिसको देखना होता था. Like I would feel that I'm more at ease if I'm looking at things even 1 hour before the exam. So have a material that you can go back to. And हम इतनी सारी test series लेते हैं, we attempt a lot of questions just to simulate our mind for the day, for the actual day of prelims. But you may read about something in some test, but आपका वो recall maybe 1 हफ्ते बाद तक आप फिर भी उसको recall कर लोगे. But will you be able to recall that particular fact 1 day before the exam? You may not go back to that test paper जो आपने solve किया है. So that's why I have these things in one place. So I had made a very, it was kind of thick, मेरे काफ़ी thick एक notes मैंने बनाए थे, which had subject wise all the previous year questions from 2013 onwards, because that's when the syllabus changed. So 2013 onwards मैंने हर subject के, environment के, general science के in fact काफ़ी facts मैं हर paper को खुद analyze करती थी, and options में से भी कभी कभी answers आ जाते हैं, questions आ जाते हैं next year. So it's very important to analyze the previous year papers, and that will take time. वो बहुत redundant exercise लगेगी आपको, एक दिन निकल जाएगा, शायद 2 papers हो पाएंगे एक दिन में, but that investment will really pay off. So मेरे notes में previous year questions होते थे subject wise, then उसमें मैं add on करती थी test series के facts, any other material that I am reading,
basic books के facts. In that same material was modern history. And मैंने एक बार स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाए थे, 2-3 times after I had read Spectrum, मैंने नोट्स बनाए थी compilation में, and after that I never went back to Spectrum. So when I had to revise modern history for prelims or mains, I had to rely only on that particular booklet, and उसको मैंने highlight किया हुआ था, इतनी बार पढ़ लिया था that it almost became a part of my muscle memory. मुझे याद था कि इस पेज पे ये चीज़ मैंने लिखी हुई है. So do that, it really helped for me, because एक बार आपके पास एक reference material होता है, then you put your faith in that material. Then don't think कि ये material पढ़ लेते हैं, इसकी इतना strike rate आया था, इससे इतने questions आए थे. Don't bother about that. You be honest to your material, have faith in your own caliber, कि आपको अगर लग रहा है कि ये वाला material सही है and I'll stick to that, then stick to that. Because exam में UPSC is not making questions from a particular material. They are making generic questions. And generic questions के लिए आपकी basic books की understanding बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी NCERTs की understanding बहुत अच्छी होनी चाहिए. So NCERTs में भी the new NCERTs कभी कभी figures जो उसमें बने होते हैं उसके description में कोई fact होता है. तो मैंने इस तरह से NCERTs को भी analyze कर लिया था और उसी में से notes अपने उस material में डाले थे that मैंने ये exercise को, this happened during COVID period when exams got postponed. That's when I started preparing. So उस time पे I could give this kind of time and effort to this exercise. It took me about 2 months उस material को बनाने के लिए, but then I knew कि अब ये बन गया है तो मुझे यही पढ़ना है, and that really helped me. So these two things one must do. Consolidate everything and then keep on revising that. Another thing which I feel I did differently was that मैं कभी भी sectional tests नहीं attempt करती थी, because I don't want to specialize in environment and ecology. I don't want to specialize in IR. It is general studies, so I want to be generic about things. So मैं multiple sources से केवल full length test लेती थी, केवल. I would always attempt FLTs of 2 to 3 sources. And उसी को बार बार रिवाइज करती थी. एंड इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वो क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आ जाते थे, बट आई वुड फील कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मैंने 20 टेस्ट लिखे हैं फुल लेंथ टेस्ट, दैट मीन्स आई हैव 2000 क्वेश्चंस जो मैंने किए हुए हैं, और भले उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं बट आई वुड रिवाइज देम, आई वुड रिवाइज माई मटीरियल जो मैंने बनाया था. सो दैट काइंड ऑफ मेड मी कॉन्फिडेंट. नाउ गोइंग टू द डे ऑफ द एग्जाम, I still remember the year that I failed to clear prelims by less than a mark. Why that happened was उससे just 2 हफ्ते पहले ही या 1 हफ्ते पहले ही result आया था, and I had already got a rank because of which I am in service. So at the back of my head, I felt that I have nothing much to lose. So let me attempt everything. Which backfired, and I am talking about prelims of 2021, which was the first time that UPSC decided to ask sports वाले questions. That was the year जिसमें पूरा पेपर नहीं attempt करना था. That is common knowledge. कोई भी इंसान उसमें, any serious aspirant would not attempt 100 questions. But I attempted thinking कि क्या ही हो जाएगा. And the worst did happen. I failed to clear by less than a mark. So do not over attempt. Please take calculated risks, because you get to write prelims after 365 days. So it's a long shot and it's a big risk to take. Mains में भी मैंने यही चीज़ की. मैंने 2013 onwards mains के questions उठाए. Prelims में भले ही उतने ना repeat होते हों, but mains में बहुत questions repeat होते हैं. And I felt this year writing mains, I'm sure these people will agree, इनफैक्ट काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जस्ट 2022 के एग्जाम से या 21 के एग्जाम से. दे माइट ऐड एक और फॉलो अप क्वेश्चन ऐड कर देंगे, बट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, द फंडामेंटल क्वेश्चन, द इशू दैट दे आर आस्किंग रिमेन्स द सेम. सो मैंने वही अप्रोच फॉलो किया. मैंने 2013 ऑनवर्ड सारे पेपर्स के मॉडल आंसर्स या तो चैट जीपीटी से या फिर गूगल पे या फिर किसी कोचिंग के किसी सिनॉप्सिस से एक जगह कंपाइल किए, जो मुझे लगा कि बेस्ट फैक्ट्स होने चाहिए इस क्वेश्चन के, बेस्ट इंट्रो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, उसके मैंने मॉडल आंसर्स बनाए हैं बाकायदा. दैट एक्सरसाइज अगेन टुक
took up about 1 week, 10 days, but it was a good, उसका return of investment भी बहुत अच्छा होता है. You can do this exercise before prelims would be the best case, but just after prelims और mains के prelims के result के बीच में जो time होता है, when one is fairly clueless कि आपका होगा या नहीं होगा, आप उस time ये चीज़ कर सकते हो. So that आप used to भी रहते हो कि mains में अच्छा ये subjects हैं, ऐसे ऐसे questions आते हैं, तो तब आप उनके model answers prepare कर लीजिए, and trust me, बहुत questions repeat होते हैं. Unless of course it's some subject like GS3 which is completely current affairs driven. So उसमें questions repeat होना उतना possible नहीं है, but उसमें भी होते हैं. Left wing extremism बहुत बार repeat होता है. So भले आपका introduction can be some recent happening, but आपके dimensions तो same ही रहेंगे. So again, consolidate and keep revising. For mains, answer writing goes without saying. For interviews, especially, I'll be very grateful to Next IAS. मैं Next IAS के interview guidance program में I was a part of it, and Dipin sir के जो current affairs classes हैं, not just for my interview preparation but for mains, I think मैंने GS2 में तो verbatim Dipin sir के answers के notes लिखे हैं. मतलब I didn't have to go anywhere as far as international relations were concerned. मुझे बस इतना पता था कि मैं दिपिन सर के नोट्स पढ़ लूँगी 5 बार 6 बार, तो पूरा पेपर मैं उसी से लिखूँगी, एंड एग्जैक्टली वही हुआ था. सर के नोट्स से ही क्वेश्चंस आए थे मोर और लेस. GS3 वाज कम्प्लीटली सर के नोट्स, एंड सर के नोट्स भी आई फील, आई डोंट नो हाउ ही डज इट, वो इतने मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स पढ़ाते हैं. वो इकोनॉमी, यू विल फील वाइल सिटिंग इन हिज क्लास कि सर इकोनॉमिक सर्वे को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, वाई इज ही टॉकिंग सो मच अबाउट. 2-3 क्लासेस इकोनॉमिक सर्वेज की चल रही हैं, बट देन दोज आर द फैक्ट्स जो आपके आंसर्स को एनरिच करते हैं मेंस में. दैट्स व्हाट मेक्स योर आंसर स्टैंड आउट. अगर आप किसी GS2 के आंसर में कोई ऐसा GS3 का फैक्ट लिख दो, सो दैट मेक्स योर आंसर लिटिल डिफरेंट. इट हैज़ टू बी रेलिवेंट ऑफ कोर्स. कोई एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन आप बना दीजिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम Dipin sir's classes. So you are at the right place if sir is here taking your classes. आपको और for few subjects I feel Dipin sir के notes के अलावा ज़्यादा आपको नहीं वरी करना होता है. And then for interview, of course, it's a moment of celebration. वैसे ही candidates को लगता है that almost 75% of the journey is coming to an end. But interview again, you give mock interviews and you take feedback from people. You cannot obviously build your personality in a day or maybe in 2 weeks जब आपका interview होता है. But throughout the journey, I think आपकी एक personality बनती है. And that personality is very positive if you want it to be positive. तो अगर आप हमेशा positive रहेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आप एक दिन लबासना जाएंगे, एक दिन आप UPSC भवन जाएंगे, and you will be there, you'll see your name in the first page of the list, then your face will reflect that. And same goes otherwise. If you will feel negative, then your face will be negative. So try to stay positive. I know it's easier said than done. आज यहाँ बैठ के मैं बोल रही हूँ, बहुत आसान बात है. But I don't know what's funny. Think what's so funny. So yeah, so like just stay positive and stay cheerful. So that's all from my side. I think I've covered. Hello everyone. I am Dr. Sachin. I come from Karnataka, and this was my 4th attempt. And I have anthropology as my optional. So I'll keep it short to start with. And second thing is, this is our part of the story. It's your responsibility to create your own story. Okay, you just listen to our stories, but it's absolute responsibility of yours. And so I'll just give you three points for one. How did I sustain myself across all these failures for 3 attempts, and this was my 4th attempt. And 3 points for prelims and 3 points for mains, because most of the things she has already covered. So so 3 things with why. How did I overcome the failures? One was. Getting into civil service was always my childhood dream. So even though I did my graduation in medical science, I always wanted it badly. So this was so big a dream, I couldn't let go of easily. So I knew why I came into civil service. That internal motivation was always there. I didn't rely upon any external factors for that. Although, yeah, topper talk, friends, achieving success, all those things motivate you. But you should know why you are into the civil service. That is most important thing. If you know why, I always believe you will get answers for when, how, what, everything.
And second thing is, you should have a proper ecosystem around you. Okay, that is very important. I believe in process. So if you can create, for example, I would say that you should have that proper routine with yourself. You should be knowing what you'll be doing throughout the day. It's better if you can plan what you'll be executing the next day, the day before itself, before sleeping. And a second, like you should have proper friends, like who are serious enough and who can motivate you, who can see potential in you, and who can hold your hands in the time of failures. One thing is, you should have conceptual clarity. For example, I can divide the entire prelims subjects into two categories, like one where you need to have one which is more conceptually oriented, and other way, which is more awareness oriented, like current affairs awareness oriented. For example, polity, economy, and geography to an extent, I consider it to be conceptually oriented, and these, and all my friends and even myself, I've consistently cleared prelims. And one thing that favored me was I was getting good, I was having good accuracy with respect to these three subjects. And I believe everyone who wants to clear prelims should have that accuracy higher, because it's easy to get correct answers in conceptual clarity questions. And obviously you should have like you should uh, if you are reading a newspaper on daily basis, that's well and good. Otherwise also you can have you can go for compilations with respect to science and tech environment, or even I think Dipin sir's ka current affairs class mein there is a science and tech module. You can follow that, you can just rely on that. So this is what I did. And the second thing is with respect to the PYQs. I believe that PYQ acts like a source code. It's like a operating software for a system. So it's like, if you can understand what UPSC is trying to think, like why UPSC is putting this option there, how it is trying to trap you, like, and what UPSC evaluate thinking in arriving at this question answer. So prelims is basically about eliminating, right? So if you can understand the language of UPSC, analyzing PYQs throughout your preparation, not just 10 days or 15 days before the actual exam, that is most crucial thing. And also I did this routine every year. Like I used to solve past 10 years ka UPSC papers, prelims papers at the exact time, like 9:30 to 11:30. I used to develop my system for that, like prepare my system for that. And this is with respect to PYQ. And thirdly, with respect to how to approach the paper on the day of exam, she covered about the calming aspect and everything. But I used to solve the paper in rounds wise. Like first round, I used to complete it by 1 hour 20 minutes or something, and I used to tackle two types of questions. One with absolute clarity, and one without absolute. Like you can't solve that question. So if you can cross 40 plus questions in first round, I think you have a fair chance of clearing prelims. And and also you should figure it out yourself, that sweet spot, like how many questions to attempt. I always believe that attempting more than 90 works in my favor. So you should all figure it by yourselves. And once I did that, so 40 I was absolutely sure, and in other 50 may, even if I can get 27 correct, I think I can still clear prelims. That was a safe policy. And even with respect to mocks, you should give as many number of mocks, and you should always learn from the mistakes, like not just give the mocks and leave it at it, but you should go back, see where you are making the mistakes, and execute in the next mock. So these three things for prelims. And another three things for mains. One, again, I believe the better the conceptual clarity you have with respect to the issues at hand, the better you can appreciate the demand of the question, the better you can write the answer for it. Otherwise, what happens, many a times we believe that we understand the demand of the question, which is not actually true. And I believe understanding the demand of the question forms like 40-50% of the, like if you can understand it right, you can come up with better points. You can write such points which evaluator will appreciate. So that is one thing. And second thing is, I made my mains or answer writing more value addition based. For example, I had my own strategy across papers like GS1, 2, 3, 4, optional, essay, everything. For example, I knew what, see, basically what should happen is, like if you're writing history answer, if any other random guy reads it, it should sound like history answer. Like you should use subject related vocabulary. And when you're writing history, you should be writing about timeline. You should be giving those facts, like the kingdoms, the places, the ports, whatever it is. And you should be drawing diagrams wherever relevant, like
temple architecture or coins, all those things. And if you're writing economy topic, you should be bringing all economic concepts, thinkers, and graphs, which are most important, and also economic survey, data, figures, those things. And if you're writing, for example, governance answer, you should be bringing in government reports, right? Like you should be bringing in case studies, these things. And if you're writing ethics answer, examples, and using right vocabulary, again, ethics is all about vocabulary and examples, if I can boil it down to 2 points. And also case studies if you have framework, like, see, I believe that UPSC can't come up with new case studies every single time. It has exhausted its possibilities. Like, we have good enough quanta of case studies. Like, it's been 2013, say 2024, you have 12 years. So if you can go through all the case studies and categorize it yourself, like one related to disaster management, one related to public, one related to private, and if you can approach it, if you can start thinking, okay, how to write answer for this particular topic, and this will help you, because ethics is one subject where you find it difficult to complete the paper. So if you can do it, if you be ready with your framework to write there, I think you can generate points better. This is what I did with across papers. And anthropology, actually, see, many people say that it's a simple subject and it's easy to score and all, but considering the availability of the market and democratization of information with respect to anthropology, the competition has increased. You can't, for example, you can't just rely on Akshat Jain sir's ka material and be assured that you'll be scoring 270 plus. That won't happen. You need to put extra efforts. It took me some time to realize that, like, you need to put extra efforts. For example, I believe that any anthropologist student who aspires to score above 300 should read Ember and Ember and refer to toppers notes, and also some standard textbooks, right? Like, we have LP Vidyarthi for Tribals of India. These kind of things you should do. And third thing is, with respect to the toppers copies, they are like the treasure box, okay? If you can go through the toppers copies and analyze what that they have done, like, you can compare yourself, like, go through the same question and try to answer it yourself and try to see how they have answered. If you can just compare yourself, you'll get the difference. Oh, this guy has done this. Like, you should be careful with how he's writing intro, how he's writing the body, how he's writing the conclusion. If you can be as attentive in analyzing his paper, you'll be better equipped to write a better answer. And I think I covered 3 points, right, for mains. And with respect to interview, I don't have 3 points. Okay, basically because my interview was on April 7th. Although I did get good enough time, I started my interview preparation only after March. And I believe that interview is more about personality than knowledge. So I was trying to see how I can bring out my personality in my answers. And second thing is having perspective about all the issues at hand. Like, even if anyone comes and starts asking you on any random issue, you should be able to generate your own perspective. It's better to always be ready with the perspectives beforehand, so that you will know how to arrive. For example, what happens is, after a while, you can start categorizing it into different segments, like where you can have positive opinions, negative opinions, neutral opinions, and all those things. And the third thing with interview is, you should be comfortable speaking in formal setting, and that requires to give as many mocks as possible. So these are the 3 things with interview that you people should be doing. And all the best, my friends. मेरा नाम मोहम्मद नायाब अंजुम है और इस साल मेरा 292 रैंक है और मैं यहाँ ही का फाउंडेशन बैच का हूँ 21-22। तो इस क्लासरूम में मैंने बहुत बार बैठा है, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली इस कॉर्नर पे, ठीक है, क्योंकि मैं कॉर्नर पे ही बैठता था और फिर वापस हो जाता था अपनी क्लास से, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह में भी मैंने इसी क्लासरूम में बहुत बार बैठा है। तो एक इंसिडेंट है फर्स्ट मेंस का मेरा 2022। मुझे ऐसे नहीं आता था लिखना, ठीक है। मैं बैठा यहाँ पे और 1.5 घंटा बैठा मैं, और सिर्फ 1.5 पेज लिखे, और वो क्वेश्चन था सिर्फ मीडिया पे, जो मतलब कोई भी लिख सकता है, क्योंकि मुझे आता नहीं था, ठीक है। फिर वो चीज़ें सीखने के बाद फिर मैंने लिखा, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, तो हम लोग भी उस टाइम पे टॉपर स्टॉक होता था, वी यूज्ड टू लिसन, बट जो चीज़ आपके अंदर है ना, वो आपकी है, और यूपीएससी जो है वो आपको जज करता है। हम यहाँ से बोल के चले जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोल के जाएंगे अभी, बट आपके पास वही चीज़ रहेगी जो आपकी है, ठीक है। और आप उसी चीज़ को यूज़ करना जो आपको अच्छा लगता है।
जो आपको लगता है कि नहीं वो चीज़ सस्टेन करेगी, आपके हिसाब से है, आपके अकॉर्डिंगली है, ठीक है। और जैसे अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है, और मेरी कोई पर्सनल इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी नहीं रही है, ठीक है, कि प्रीलिम्स को लेके या मेंस को लेके। और कोई ऐसा है जो उसको हिंदी समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और जैसे स्ट्रेटजी नहीं है, बट एक चीज़ जो लार्जर एस्पेक्ट में रहती है चीज़ें, जैसे मेरा प्रीलिम्स तीनों बार क्वालिफाई हुआ, और मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में फिर अभी सेकंड अटेम्प्ट में मुझे रिजर्व लिस्ट में डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला था। तो चीज़ें क्या है कि आप अपने हिसाब से सोचो, आप अपने हिसाब से करो, समझो चीज़ों को, और जो भी अप्लाई होता है आपके अकॉर्डिंगली वो करना है। जैसे प्रीलिम्स में क्या होता है, अभी आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है, बहुत कम मार्क्स आते हैं, ठीक है, मेरे कभी 80 प्लस नहीं आए हैं आज तक, बहुत रेयर चांस हुआ है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 60 मार्क्स आते थे। तो आप उसको नेगेटिवली नहीं लेना, ठीक है, वो एग्ज़ाम अलग है, वो दिन अलग है, और वो पेपर अलग होगा, वो यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ के पेपर नहीं है। तो उस दिन को आप फोकस में रखना, और वो बेस्ट दिन होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सारे नेगेटिविटीज़ आपको लेके नहीं जानी है एग्जाम हॉल में, ठीक है, चाहे 40 नंबर आ रहे हैं कि 20 नंबर आ रहे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, जब वो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आप, तो मुझे ऐसा लगता है जो वो दिन है ना, वो आपका एक वॉर जोन में होते हैं आप लोग, सब लोग, ठीक है। तो उस 4 घंटे की जो, और जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है आपका, उसमें आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना है, ठीक है। जब आप एंटर करते हैं एग्जाम में, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आप आए हैं यहाँ पे, आप एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि पेपर आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ ऐसे आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होनी होती है, ठीक है। आप जो है एग्जाम में एक पहले अपने आप को तैयार करके जाएं कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सबकी एक्यूरेसी अलग होती है। जैसे मेरा होता है 85 टू 92 के आसपास में मारता हूँ, चाहे मुझे आ रहे हो नहीं आ रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे वो नहीं मारता, मुझे मारने हैं तो मारने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, वो मैं करके आता हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं होता कि मैंने कितने सही मारे, मेरी एक्यूरेसी मुझे 0% नॉलेज है। मैं जब भी एग्जाम से निकलता हूँ मुझे पता नहीं होता मैंने कैसे एग्जाम दिए, ठीक है। और जब फिर आता हूँ तो मुझे ये नहीं पता, मैं वो सोचता ही नहीं कि मेरा जीएस कैसा हुआ, नहीं हुआ, क्लियर करूँगा नहीं करूँगा, तो मुझे सीसेट पे ध्यान होता है। सीसेट आप उस टाइम पे रिवाइज करेंगे, कुछ फार्मूलेज होते हैं जो भूल जाते हैं हम, जैसे क्लॉक से रिलेटेड होते हैं, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फार्मूले जहाँ कन्फ्यूजन होता है, वो आप उसको रिवाइज कर लेना उस ड्यूरेशन में, ताकि वो आपको आसानी से उस समय जब आए ना, तो वो आप कर सको उसमें। और सीसेट में हर आदमी की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, सबका अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, कोई कॉम्प्रिहेंशन के साथ जाता है, कोई मिक्स करके जाते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपने स्ट्रेंथ और आपको अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए। जैसे 2023 का पेपर आया, उसमें पीएनसी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और पीएनसी मुझे नहीं आता है, ठीक है। मैं बाद में आके देखा, मैंने देखा कि एक भी मैथ्स के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए, ट्राई किया है लेकिन वो मारा नहीं है मैंने, ठीक है। और मार्क्स आए कितने 90। मैंने कहा यार बहुत अच्छा है। तो वहाँ समझ नहीं आती। तो आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सको। और उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की। कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका अच्छा है तो आप उस पर जाएँ, आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है। और एक चीज़ ये है कि किसी एक के भरोसे तो मत जाना, उससे नहीं होगा भाई, ठीक है। तीनों का तीनों आपको लेके चलना पड़ेगा, एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस हों कि आप क्लियर कर जाओ, ठीक है। और वो फेयर दिल से हटा दो अपने दिमाग से कि वो सीसेट नहीं होता है या टफ होता है, कुछ नहीं होता है। वो उस दिन की बात है और आपकी मेहनत की बात हो जाती है, ठीक है। और मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं रही है, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, तो ऑप्शनल मेरा ठीक है, ठीक है। 2022 में जो मैंने दिए थे तो 30-40 मार्क्स के दोनों पेपर में छोड़े थे, मतलब 80 मार्क्स के छोड़े थे मैंने क्वेश्चन, और मेरे मार्क्स आए थे उस साल 211। लास्ट ईयर मेरे कुछ एक समझ में आया कि मेरी आंसर राइटिंग ठीक है। मतलब ये आपको भी समझ में आनी चाहिए कि आपकी क्या बेस्ट है। मेरी आंसर राइटिंग मुझे लगता है नेचुरल है, तो लास्ट ईयर मुझे बस ये समझ में आया कि सारे पेपर मुझे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो मेरे ऑप्शनल में है 282, और कुछ 10 मार्कर क्वेश्चन मैंने बस रफली कंप्लीट किया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो मेंस में ये हो जाता है कि आपको पेजेस के ना नोट्स बना लेना। आप जो भी टॉपिक वाइज कुछ करंट न्यूज़ में होते हैं, जैसे स्पीकर का चलता रहता है कुछ ना कुछ, गवर्नर का कुछ ना कुछ चलता रहता है, प्रेसिडेंट रूल चलता रहता है, ये सारी चीज़ें आपको एक एक पेज नोट्स बना लेने होते हैं, ताकि एटलीस्ट पॉइंट्स बहुत जल्दी आ जाएं आपके दिमाग में और टाइम सेव कर सको आप, ठीक है। और एक चीज़ जो मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनली से हट के है, मेरे कभी पेपर कंप्लीट नहीं होते यहाँ। मैं 4 घंटे 4.5 घंटे में पेपर लिखता हूँ यहाँ पे, बट मुझे ये भरोसा होता है कि मैं 3 घंटे में वहाँ लिख लूँगा।
तो आपको ये सेल्फ बिलीव आप पे होने चाहिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप 4 घंटे में लिखना, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लेना, सब अपने अपने हिसाब से। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपकी टेस्ट सीरीज कितने लिखना है, आपकी क्या समझ में आती है। मेरे टेस्ट सीरीज ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूँ, मेरी अपनी है कि ठीक है मैं नॉलेज पे थोड़ा सा ध्यान दे देता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत वीक है। आप कुछ पूछोगे तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ अभी, है ना। तो ऐसा ही रहता है भाई। और ये प्रिपरेशन ऐसा है ना, और जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं अभी 292 रैंक आई है, तो ये 1 साल की जर्नी नहीं है, बहुत बहुत लंबी जर्नी है। 4 साल 5 साल हो गए हैं, ठीक है। तो वो सारे एक्सपीरियंस सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तब आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप होती है। और मैं आज बोल रहा हूँ, आज से 1 साल पहले तुम मुझे माइक पकड़ा देते तो मैं भाग जाता, क्योंकि मुझे नहीं बोलना आता था। मुझे यूपीएससी ने सिखाया है लास्ट ईयर इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी होगी, आप अपने से तैयार करना। और एक चीज़ जो बेस्ट चीज़ जो यूपीएससी जज करती है आपको, वो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी। चाहे आपके प्रीलिम्स हो, चाहे आपके मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर 4 घंटे का प्रीलिम्स है, तो आपको 4 घंटे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये नहीं आपको हार माननी हाफ एन आवर पहले कि मेरे से बस हो गया, अब मैं नहीं हो पाएगा मेरे से। आपको लास्ट मिनट जब बेल बजती है ना, तब तक आपको मोटिवेटेड रहना है कि ठीक है, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, घंटी बजी, सबमिट करो, उसके बाद तुमको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो। जब तक आप एग्जाम हॉल में रहते हैं, तब तक आपको फाइट करनी पड़ेगी, प्रीलिम्स में और मेंस में, क्योंकि मेंस भी बहुत टफ होता है, क्योंकि इतना लंबा होता है ना, आपके बीच में गैप हो जाती है। इस बार क्या हुआ मेरे साथ, जीएस वगैरह दे के आया, बीच में 1 वीक का गैप होता है। अब मुझे माइग्रेन हो गया, ठीक है, सेट मंडे को ही, और 2 दिन मेरे उसमें चले गए। तो अब ये इशू है कि अब मेरे पास 3 दिन है, मुझे पूरा ऑप्शनल रिवाइज करना है। तो उसमें मुझे एक ही चीज़ मोटिवेशन हुआ कि ठीक है, लास्ट ईयर आई हैव गॉट 282, इसका मतलब है कि मेरी चीज़ें आती है, मुझे अपने आप को फोकस रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, ताकि कोई चीज़ मुझे हैम्पर ना करे, ठीक है। तो इस साल लास्ट ईयर से बेटर हुआ है। जैसे मैम ने बोला कि कुछ सर्टेन नहीं कि कितना मार्क्स आ जाएंगे, बट होपफुली कुछ बेहतर ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर 490 के आसपास रैंक आई थी, इस बार 292 के आसपास रैंक आई है, 292 रैंक आई है, तो बेटर ही हुआ होगा कुछ। तो अपने आप को काम एंड कंपोज रखो, और पॉजिटिव रहो हमेशा। आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बट आपको कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी पड़ेगी, कुछ ऐसे लोग बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको रखनी पड़ेगी जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रहो। और पॉजिटिविटी के बगैर एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको उतना मोटिवेटेड रहना पड़ेगा इंटायर जर्नी में, बहुत लंबी होती है। आज स्टार्ट आज नहीं हुआ, 3 मेंस हो गए ना, 3 इंटरव्यू हो गए। तो ये तीनों इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू 3 मेंस में मुझे मोटिवेटेड रहना पड़ा है, तभी यहाँ तक हो पाया है, ठीक है। और कभी मैं भी आपके जैसे सामने बैठा रहता था, सुनता रहता था, तो वो चीज़ हो जाएगी, वो जर्नी ओवर हो जाएगी एक दिन, ठीक है। और जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, तो भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि मैं ना बोलना नहीं जानता था, मतलब कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट था पढ़ने लिखने में, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ मेरी ज़ीरो है। मेरे कोई स्पोर्ट्स नहीं है, किसी भी एक्टिविटी में ज़ीरो हूँ। तो मुझे नहीं आती थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है 1 साल के अंदर। मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, ठीक है। भले इंजीनियर हैं लेकिन नहीं आता है, ठीक है। बट इंग्लिश में मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे सीखना था, वो डर हटाना था कि यार फिर कहीं बोलने की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करूँगा मैं। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने इंग्लिश ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल दिया कि जो है इंटरव्यू का मीडियम मेरा इंग्लिश रहेगा। तो अब तो हालत ख़राब हो गई जब लिस्ट आ गई कि यार अब कैसे क्या होगा। और एक हमारे इंस्टीट्यूशन एक है छोटा सा हम लोगों का, जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे एक आईपीएस आए थे, रिटायर्ड आईपीएस, ठीक है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और उससे मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का चल रहा था लास्ट ईयर। तो अब मैं ऐसे जवाब दिया जैसे मतलब कोई 3rd क्लास का बच्चा हो। अब बाद में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, ये कर क्या रहा है, तेरे 2 महीने में इंटरव्यू होने वाला है भाई। फिर सारी चीज़ों को मैंने रीओरिएंट किया कि अपनी चीज़ें अपने को समझना है, अच्छा सीखना है लोगों से जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे। उन लोगों से मैंने सीखा कि अच्छा आंसर फॉर्मेशन कैसे होता है, आप स्टार्ट कैसे करते हो किसी चीज़ को। आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते हैं कंटेंट पे, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ता है, आपको समझनी पड़ती है चीज़ों को, ठीक है। तो वो चीज़ हुई। और इंटरव्यू में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, एक मेंबर का मैंने एक भी आंसर नहीं किया, एक तरफ से सॉरी 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 सर मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो पर्सनल क्वेश्चंस, वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे, जिसमें मुझे आंसर करना चाहिए था, ठीक है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को लूज कर गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ मैं मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका था। सेकेंड मेंबर थे वो, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू बैकअप। तो फिर 3rd 4th 5th का फिर मैंने आंसर्स किए, तो 165 मार्क्स दिए थे, जो कि मेरे लिए अच्छे मार्क्स थे। मुझे एक्सपेक्टेशन हो रहा था कि शायद 140 ना दे दें मुझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जो जर्नी है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। पढ़ाई तो एक पार्ट है, बाकी जो दूसरी एस्पेक्ट है अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग,
वो आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा यूपीएससी से। जो मैंने सीखा है मुझे मतलब आई नो, और जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको पता है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। एकेडमिकली साउंड था मैं, मुझे समझ में आती थी चीज़ें, बट जो बाकी इंटरेक्शन होता है, आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो चीज़ हो जाती है। और एक चीज़ जो ऑप्शनल है आपका, किसी का कोई भी ऑप्शनल होगा, ठीक है, तो ऑप्शनल में एक चीज़ होती है कि आपकी जो आपने पढ़ा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि आप जो समझ रहे हो, वो समझ बहुत ज़रूरी होती है। अब क्या है ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ऑप्शनल्स में। एंथ्रो का इस बार का पेपर बहुत, सेकंड पेपर खासकर, वो ऐसा लग रहा था जीएस का पेपर है। बट आपको, आप एग्जाम हॉल में हैं, आप ये नहीं कह सकते भाई ये जीएस का पेपर मैं तो नहीं लिखूंगा, है ना, ये तो नहीं कह सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा। और वो लिखना तब समझ में आता है जब आपको उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। आपको समझ में आता है कि ठीक है क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा है इतना सारा, अब मैं तो लिख के जाऊंगा इसमें, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। हर ऑप्शनल की अपनी अपनी खूबी है, अपनी एक वोकेबलरी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, अपने स्कॉलर्स हैं, और वो कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक पेपर 1 का है तो मैं पेपर 2 में नहीं लिखूंगा, या पेपर 2 में मुझे नहीं, उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको। आप सारी चीज़ों को इंटरलिंक करो, उसको एक बड़े उसमें फ्रेमवर्क में आप देखो, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और धीरे धीरे आराम से, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। आप कभी भी अगर डरोगे तो फिर नहीं हो पाएगा इसमें। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप अपने एनर्जी को रीओरिएंट करते रहो। और अभी 1 मंथ बचे हैं प्रीलिम्स के, ठीक है। लास्ट ईयर मुझे 40 डेज मिले थे सिर्फ, ठीक है, 40 डेज मिले थे, क्योंकि मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू था 24 अप्रैल। आज कौन दिन है? 23 ना, 24 का था मेरा, और मुझे 45-50 डेज मिले थे। तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या करना होगा। मेरे पास टाइम कम है, लेकिन पढ़ना तो भाई सबको पड़ेगा। जो 3 महीने से पढ़ रहा है उसके साथ मुझे कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे आप चलते रहो। और यहाँ नेक्स्ट आईएएस में आप हैं, मैं पर्सनली 3 साल से यहाँ पे हूँ, ठीक है। सारी जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट सब में, ऑप्शनल को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। टीचर से लेके सारे बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो आप उनसे मिलते रहिए। पर्सनली मैंने नहीं मिला है किसी से, ठीक है, आज तक। तो क्योंकि मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि अब मैं खुद से सीखूंगा तो ज़्यादा सीखता हूँ, ऑब्जर्व करके सीखता हूँ ना तो ज़्यादा सीखता हूँ कि अच्छा ठीक है सर ने ये पढ़ाया है तो क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है। और बाकी जो अपने भी दोस्त हैं जो भी हैं उनको देख के मैं सीख जाता हूँ। और टीचर से जाऊँगा तो मुझे डर लगता है यार, क्या बोलेंगे, सवाल पूछेंगे, मुझे डर लगेगा, मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ है, आप लोग मत करना, आप लोग टीचर से मिलते रहें, ठीक है। उनसे जो भी फीडबैक मिले, जो भी जैसी चीज़ें मिले, आप उनसे करते रहना, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, और होपफुली, देखो ये बहुत अनसर्टेन है, कोई कुछ नहीं कह सकता इस एग्जाम के बारे में। आप पॉजिटिव रहोगे तो एक सिविल सर्वेंट पता नहीं कितने लोग, 1000 लोग बनते हैं, लेकिन एक आप अच्छे इंसान तो बन जाएंगे, बिकॉज इट्स यूपीएससी एंड बहुत सारी चीज़ें सिखा जाता है ये। और इट्स अ जर्नी, एक दिन का गेम नहीं है, या 2 महीने 4 महीने का नहीं होता है, ये पूरे साल चलती है। तो पूरे साल आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल कुमार चौधरी है और मैंने इस साल 876 रैंक हासिल की है। सो मैं नेक्स्ट आइस का ही स्टूडेंट हूँ, 2022-23 B7 बैच। तो 2023 ओके, यहीं बैठता था भाई, उधर बैठते थे तो मैं वहाँ बैठता था। वो कॉर्नर फिक्स थी मेरी। सो 2023 मेरा पहला अटेम्प्ट था और फॉर्चुनेटली 2023 मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था। सो इंटरव्यू तक पहुँचना पहला अटेम्प्ट में बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी मैंने, मैम ने बताई, और जो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेंस में ऐसा भी हो सकता है, सर बताया। एग्जैक्टली, आई वर्क, क्योंकि मैं पहला, ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा, तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो आई वर्क ऑन बेयर मिनिमम। कि बेयर मिनिमम क्या करना है, हर एक अलग अलग 3 स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस की डिमांड अलग अलग है। तो क्या बेयर मिनिमम करे कि आई गो थ्रू, पास हो जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। क्योंकि मैं पहले अटेम्प्ट में ये नहीं सोचूंगा कि आई विल बी ऑन टॉप 100 और आई विल बी स्कोर 100 और टॉप 100 AI रैंक आ जाएगी मेरी, और जो भी तो मैं बेयर मिनिमम पे था। तो सबसे पहले बेयर मिनिमम है तो सिलेबस कवर करना, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना। जितना बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होगी, आपका वो जो नंबर सर बता रहे थे कि 40 क्रॉस होने चाहिए पहले अटेम्प्ट में, वो सारे इसी से होंगे।
जब तक आप वो 40 मार्क नहीं क्रॉस करोगे आप फिर उसके ऊपर बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो पहले तो बेसिक्स बिल्ड करो अपने, पहले ईयर की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि मैं कोचिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद शाम में ऑप्शनल की कोचिंग थी, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं वैल्यू एडिशन करूँ, इसलिए मैं सिर्फ बेयर मिनिमम खेला। प्रीलिम्स में बेयर मिनिमम, स्टैटिक कवर करो, रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करो, जो बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो गलत नहीं होनी चाहिए, एनालिसिस करो, 50-50 मार्क के एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करो। और मेंस में मेरा बेयर मिनिमम था कि पेपर कंप्लीट करके आओ, स्ट्रक्चर लिख के आओ, जो पूछा है वही लिख के आओ, कुछ इधर उधर का मत लिखो। तो इतना मिनिमम करने से आप कट ऑफ तक तो पहुंच जाओगे। तो मैं ये अप्रोच लेके सारा पेपर दिया, तो मेरा ऑप्शनल में बहुत कम मार्क्स रह गया था, आई स्कोर्ड लेस देन 250 लास्ट ईयर, एंड 1 मार्क से मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ पिछले बार। यू हैव माई ऑप्शनल वाज फिलोसफी, ओके, सो 1 मार्क से फाइनल लिस्ट में नहीं होना। 16 अप्रैल को पेपर फाइनल लिस्ट आया था और उससे 2 महीने के गैप में प्रीलिम्स आने वाले थे। सो यू हैव टू हैव अ मेंटल कैपेसिटी टू सिट ऑन 17 अप्रैल एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। 16 अप्रैल को आप फाइनल लिस्ट में नहीं आए, बी हैव सम ग्रेटिट्यूड कि अरे मेरे को मौका तो मिला पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने का, और होपफुल होके आप सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी तुरंत करो। आपके पास रिग्रेट करने का टाइम नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी रिग्रेट करता, मेरे दोस्त आए थे मेरे से मिलने के लिए, मैं जो भाई ने बोला ना कि वो आयरन से दूर रहो, मैं वो आयरन मेंस लिखने के बाद छोड़ दिया था, मैं नहीं रहता वो आयरन में। सीरियसली मैं आज गुड़गांव से आया हूँ, मैं अपने फ्रेंड के साथ गुड़गांव में रहता हूँ, मैं नहीं रहता वो आयरन में, क्योंकि वो आयरन गुड फॉर स्टडीज कोचिंग के लिए, बट यहाँ से बचना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत आइसोलेटेड रहिए, मिनिमम फ्रेंड्स रखिए, फ्रेंड्स भी वैसे रहिए जो आपको मोटिवेट करते हो, जो सेम पेज पे हो आपके साथ। मेरा एक फ्रेंड है, सौरभ राज नाम है उसका, मैं B7 में ही उससे मिला, उसने पहले अटेम्प्ट में, मैंने दोनों ने प्रीलिम्स क्लियर किया साथ में प्रिपेयर करके, उसने भी मेंस लिखा, मैंने भी मेंस लिखा, अनफॉर्चुनेटली उसका मेंस नहीं हो पाया तो वो वापस चला गया। तो उसके अलावा मैंने और किसी के साथ अपनी स्टडीज को नहीं बांटा, मैं आइसोलेटेड ही रहा। तो जितना आप कम लोगों से मिलिए जुलिए और फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है। मेरा हमेशा फोकस रहता था कि बेयर मिनिमम क्या करना भाई, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो सबसे पहला चीज कि सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद ना आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्लान होना चाहिए कि अब दिसंबर तक आपको सिलेबस कवर करना है, तो इस मंथ में ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। फिर वीक का स्ट्रैटेजी होता है, फिर दिन का स्ट्रैटेजी होता है। तो जो भी ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव इमोशन से कैसे बचना है या डाउन डिमोटिवेटेड फील होता है, तो मेरे लिए मोटिवेशन था कि मैं आज का जो भी मेरा स्ट्रैटेजी है कि मैं ये कवर करूंगा, ये पढ़ूंगा, वो मैं अगर 80% तक कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं घूमता था बढ़िया कि हाँ भाई आज तो मैं राजा हूँ भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा हूँ सबसे ज्यादा। मेरा लाइब्रेरी आने का मकसद होता था कि आई कम टू वर्क माई वर्क स्टेशन, ये मेरा वर्क स्टेशन है, 9 बजे से 10:30 बजे तक रात में बैठूंगा, सुबह 9 से 10:30 बैठता था मैं, और दिन भर का जो भी मेरा गोल्स होते थे वो मैं अचीव करता था 80-90% कर 100% नहीं होते कभी। और मैं घर जाता था, आराम से सो जाता था, और रात में या तो रील्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम मैंने बंद कर रखी थी, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स का आदत लगा हुआ था तो आधा घंटा मेरा वो खाता था मैं, तो 12 बजे मैं सो जाता था, 7 बजे उठ के मैं वेस्ट पटेल नगर में रहता था, ओआर में तो रहा ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, ओआर में नहीं रहा हूँ, वेस्ट पटेल नगर में रहता था, थोड़ा सा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण भी। तो वहां से मैं आ जाता था 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके, 9 बजे अपने वर्क स्टेशन पे, जो भी दिन का जो भी मैं पिछले रात को मैं प्रिपेयर किया हूँ कि मेरे को ये कवर करना है, या वीक का जो भी स्ट्रैटेजी चल रहा है ये कवर करना है, इन सबको वो मैं कवर किया रात तक। बीच में खाना खाने गया, शाम में आधे घंटे की चाय होती थी, अब चाय पे सारा स्ट्रेस रिलीज होता है। अब लड़कों की चाय टपरी जो होती है मैं एकदम रिलीजियसली फॉलो करता हूँ कि शाम की आधा घंटे की चाय टपरी पे तो होगी, जो भी होती है लड़कों की वो होती थी, वो एकदम स्ट्रेस बस्टर रहता था, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। उसके बाद गए, आपकी एनर्जी और एनर्जाइज, अब जो भी बचा तुरंत खत्म करो, रात का खाना लेट खा लेंगे लेकिन ये खत्म करके जाना। तो मैं डेली पे वर्क करता था, सब वीक्स पे वर्क करता था, और मैं सोचता था कि अपने टारगेट्स अचीव हो। उसके बाद एक तो सिलेबस कवर करना हुआ, फिर अलग अलग स्टेजेस की अलग अलग प्रिपरेशन साइकिल होती है। अब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन साइकिल 3 महीने की 4 महीने की होती है। तो जनवरी से मेरे को वहाँ जाना है, जिसमें मेरे को मल्टीपल रिवीजन करना है, टेस्ट लगाना है। मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि सेक्शनल नहीं लगाती थी मैम, मैं भी कभी नहीं लगाया हूँ सेक्शनल। क्यों नहीं लगाया हूँ?
क्योंकि सेक्शनल से एक तो मेरे सेक्शनल में मार्क्स भी नहीं आते थे तो लगाऊं क्यों, एक दो बार लगाया मार्क्स नहीं आते थे, मैं बोला कि क्यों करना भाई, क्योंकि एक टॉपिक है अगर और उससे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं तो बहुत डिटेल्स में क्वेश्चन बनाएंगे, और 100 टॉपिक है और उससे क्वेश्चन बनाने हैं तो आराम जनरिक क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसलिए मैं लेंथी वाले करता हूँ और लेंथी वाले से मैं रेलिवेंस ज़्यादा रखता हूँ। तो मैंने नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किया ही हुआ था, और मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था। मैम ने बोला कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज लेना, मैं अभी सेम फॉलो किया हूँ, मैं सारे कोचिंग का फ्री टेस्ट सीरीज देता था, फ्री टेस्ट सीरीज उठाया जा करके दे दिया। उससे क्या होता है ना कि आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन हैंडल करने का आइडिया हो जाता है कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको आराम से हैंडल कर लोगे। 2023 प्रीलिम्स वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड इट वाज, आपको मैं क्या बोलूं, मतलब बहुत अलग ही पेपर आया हुआ था, और वो पेपर को हैंडल करने का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो भी मैंने मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाई थी तो मैं सारे इंस्टीट्यूट का लगा लेता था रिगार्डलेस ऑफ मार्क। मैं थोड़ा बेशरम बन के ये काम करता हूँ कि मार्क्स से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को बेयर मिनिमम करना है, मेरे को जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो 50-50 वाले हैं, सिली मिस्टेक नहीं करूँगा, और जहाँ पे मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि ये चीज़ मैं नोट से पढ़ के इजीली सॉल्व कर लेता हूँ, वो होने चाहिए मेरे पेपर में, तो मैं वो फॉलो करता था। और जस्ट एज ही सेड कि 80+ कभी नहीं आया, तो 80+ आए हैं, बट 100 मैं कभी क्रॉस नहीं किया हूँ, 100 में कभी क्रॉस नहीं किया। और ट्रस्ट मी, मैंने 4-5 और टॉपरों से पूछा है कि सर बता दीजिए 100+ कैसे करते हैं, दे इवन डोंट नो कि मेरे 100+ कैसे आते हैं। मैं एकदम पर्सनली जाके पूछा हूँ कि 100+ कैसे लाना है, उनको नहीं पता। तो मेरा बेयर मिनिमम था कि भाई कट ऑफ क्लियर हो रहा ना, बस बात खत्म, तो मैं इस पे जाता था। उसके बाद मेंस पे, हाँ सी सेट्स बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, बट मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सी सेट मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं बना, क्योंकि एक तो मैंने सी सेट का कोई कोचिंग नहीं, लेकिन मैंने सी सेट के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो किए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर ने जैसे बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका माइंडसेट एक लाइन में लाता है। यूपीएससी के क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है, उसके वर्डिंग्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना, यूपीएससी का एक पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पूछने का, तो आप जब प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो आपका माइंड उस हिसाब से बैठ जाता है, तब आपको दूसरे बार अगर नया क्वेश्चन आता है यूपीएससी का तो उसी सिमिलैरिटीज पे आता है, तो वो चीज़ ज़्यादा फायदा करता है प्रीवियस ईयर पढ़ने से। तो मैं जीएस के तो पढ़ता ही था, सारा सी सेट के 5 ईयर के सॉल्व करता था, तो उससे क्या होता था कि मेरे 85-90 ऐसे मार्क्स आ जाते थे, तो मैं बोला कि 66 ही कट ऑफ है, बेयर मिनिमम करना हो गया, क्यों पढ़ना, और तो मैं वही बेयर मिनिमम किया। सी सेट 53 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और एप्टीट्यूड से, आई ओनली यूज्ड टू डू 27 और 28 क्वेश्चन, वो भी चेरी पिक करके। मेरे को थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये नहीं डूएबल है, आगे बढ़ो, ईगो पे लेना ही नहीं है, बेशरम हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने क्या दिक्कत है, मेरे को 27 क्वेश्चन निकालने 53 से, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन पूरा अटेम्प्ट करना है, ऑल अराउंड 52 अटेम्प्ट किया, अगर 10 भी गलती हुआ, किस्मत इतनी खराब है कि 10 गलती हुआ, फिर भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो सी सेट वॉज नॉट इवन ए प्रॉब्लम, 2023 वाले के लिए भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था, 24 के लिए प्रॉब्लम नहीं था मेरे सी सेट। तो ये मैं फॉलो करता हूँ सी सेट। अब ये बोस्टिंग नहीं है कि एकदम ही कोई मतलब नहीं है सी सेट का, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और एक स्ट्रैटेजी बना लेना अपने हिसाब से, तो प्रीलिम्स और सी सेट तो ऐसे निकलते हैं। मेंस में ऐसे में तैयार नहीं किया था, ऐसे का मेरा तैयारी करने का तरीका था कि मैंने उठाए टॉपर्स के आंसर कॉपीज ऐसे के, मेंस से 10 दिन पहले, उसके पहले मैंने ऐसे नहीं पढ़ी, आंसर कॉपी उठाए जो, और उनके उठाए जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में मेंस लिख रहे हो, उनके नहीं उठाए जो चौथे या 5वें अटेम्प्ट में लिख रहे हो, क्योंकि उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आप उनके कॉपी पढ़ लोगे आप डर जाओगे, मुझे लगा कि भाई मैं कहाँ पहुंचूंगा यहाँ मतलब मैं फील किया हूँ, मैं अभी भी ये फील करता हूँ कि मैं उनसे ही रेलिवेंट रख सकता हूँ जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में लिख रहे हो, उनका लेवल ऑफ राइटिंग स्किल्स और जो भी कनेक्शन वो मैं कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी या इंस्पायर इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ। तो मैंने वैसे ही उन कुछ टॉपर्स को उठाया। एक टॉपर आए थे, रैंक 11 थी उनकी 2022 में, वो यहाँ पे खड़े होके बोल रहे थे कि अगर मेरी कॉपी तुम लोग को खोल के दिखा दूंगा तो तुम लोग मेरे को यहाँ खड़े रहने लायक नहीं छोड़ोगे। तो मैं उससे बहुत रिलेट किया था
कि मेरे को लगा कि यार ये कितना जेन्युइन बंदा है कि हाँ यस सर, शुभंकर पाठक सर, मैं यही बैठा हुआ था कॉर्नर पे और हाँ, मैं यही बैठा हुआ था, इसी कॉर्नर बैठा हुआ था और मेरे को वो इतने जेन्युइन, उनका कॉपी में पढ़ा हूँ और रियली मैंने बहुत चीज़ सीखा उनसे। तो उनका कॉपी पढ़ के मैंने देखा कि उन्होंने बताया था, मतलब मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, उन्होंने बोला कि जब मैं GS4 का पेपर अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरे पास सिर्फ 45 मिनट से भी कम समय बचा था अपना पूरा केस स्टडी लिखने का। उन्होंने 1.5 घंटा जितना भी देर रहता है उस सिर्फ पार्ट 1 पे दे दिए थे, 45 मिनट से कम समय में उन्होंने ये लिखा था अपना केस स्टडीज। तो मेरे को लगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने उनका पेपर एनालाइज किया, देखा और मैंने उनसे सीखा। तो मैं ऐसे के लिए तो यही फॉलो किया था। GS 1, 2, 3 सबको पता है क्या करना है, बेयर मिनिमम मैं किया, मैंने पेपर कंप्लीट करके आया, 1-2 क्वेश्चन नहीं पता। अब वहाँ पे GS 1 में एक डिसाइडिंग फैक्टर आता है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो 90% लोगों को जो फ्यॉर्ड नहीं पता था 2023 में, अचानक से कि फ्यॉर्ड क्या होता है किसी ने सुना नहीं था। मतलब मैं अभी तक जितने टॉपर से, जितने मेंस लिखने वाले से मिला हूँ, उन्होंने नहीं लिखा कि क्या होता है फ्यॉर्ड, बट मेरे को पता था कि फ्यॉर्ड क्या होता है। ये होता है कि आपने अपना सिलेबस कितने अच्छे से कवर किया। तो अगर बस मेरे को इतना ही पता था कि फ्यॉर्ड का होता है, बाकी मैं लिख लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। सिमिलर लाइन पे ट्विस्टर पूछा है इस बार, और ट्विस्टर क्या होता है एग्जैक्टली ये मेरे को पता था, बहुत लोगों को नहीं पता था। तो ये आता है कि आप अपने कंसेप्ट, अपने सिलेबस को कितने अच्छे से कवर करते हैं। तो पहला रूल हमेशा से ये होगा कि पहले स्टैटिक को आप इतना स्ट्रांग बनाएं कि आप बेयर मिनिमम तक पहुंच जाएं। उसके बाद तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी मैम से ही पूछूंगा, सर से ही पूछूंगा कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी रही है। और इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने शुक्ला सर था बोर्ड, और शुक्ला सर बहुत बदनाम है बच्चों में कि मार्क्स नहीं देते हैं, बट आई गॉट 176 मार्क्स शुक्ला सर बोर्ड से। और 176 में देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहाँ से दे दिए मार्क्स मेरे को 176। तो मेरे दो पॉइंट्स हैं, बी जेन्युइन, ऑलवेज बी जेन्युइन, डू नॉट ब्लफ, स्पीक व्हाट यू बिलीव इन। चाहे आपका कोई भी स्टैंड हो, आप जिस पे सच में विश्वास करते हो, क्योंकि फिर काउंटर क्वेश्चन आएंगे ना, आप उसको स्टैंड लेना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो अगर आप बिलीव करते हो अपने थॉट में तो खुल के बोलो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ब्लफ करने पे गए तो हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि अरे एज हो गया, क्या ही जानेंगे इन लोग, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी अवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। तो ऐसा हुआ मेरे साथ। इस बार बीबी स्वयं सर का बोर्ड मिला था और मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्रंट फुट पे खेल के आया हूँ, पता नहीं क्या मार्क्स आएंगे, अभी तो पता नहीं है। सो होपफुल हूँ, अभी भी मैं एस्पिरेंट ही हूँ, सीख ही रहा हूँ और इम्प्रूव करूँगा। और यही रहा मेरा अभी जर्नी, सेकंड अटेम्प्ट था ये मेरा, बस और कुछ नहीं कहना। अच्छा, कुछ डाउट पूछना है? करंट अफेयर के लिए मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था। मतलब न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ता था कि मैं सुबह 11 बजे से क्लास रहती थी, तो मैं सुबह उठ के पिछले क्लास की रिवीजन किया और न्यूज़पेपर सुबह कवर किया और पॉइंटर बना लिए न्यूज़पेपर के। पहले नादान था पॉइंटर बना लिए और क्लास में आकर के मैं डिस्कस करता था अपने अगल बगल। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करके रखा था वो एरिया को, ठीक है। उसमें 4-5 लोग बैठते थे, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के डिस्कशन करते थे कि आज क्या पढ़ा, क्या आया है न्यूज़ में, ये आया। तो ये चीज़ मैंने 6-7 महीने की, लेकिन उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं मिलता था ये करने का, क्योंकि जब से ऑप्शनल चालू हो गया तो नवंबर में मैंने बंद कर दी। तो आई फॉलो, कोई एक मैगजीन फॉलो कर लो और ईयर में कंपाइलेशन आता है, आप वो स्टिक कर लो। तो करंट अफेयर मैंने बस इतना ही किया, ज़्यादा ओवरवेट नहीं किया, क्योंकि मेरे को बेयर मिनिमम करना था। मेरा स्टैटिक ही कवर नहीं हुआ तो मैं करंट अफेयर क्या करूँगा, जहाँ से मेरे को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ उतना ज़्यादा टाइम। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे, 5 किसी को नहीं आते हैं, और जो 5 किसी को आते हैं उसमें 20-30% को आते हैं। मैं नहीं करूँगा उसमें फिर। और उससे अच्छा मैं ये तो देख लूँ कि कोरिलेसिस फोर्स और विंड वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, ये मेरे को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता।
जो अच्छे खासे पढ़े हुए हैं, मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, बोले कि भाई इसका भी कोई रिलेशन होता है। बोले भाई बेसिक्स है, ये कैसे नहीं पता। बेसिक्स पे वर्क कीजिए, कंसेप्चुअल क्वालिटी पे वर्क कीजिए, यू विल बी एटलीस्ट बेयर मिनिमम कट ऑफ के पास आप आराम से पहुंच जाओगे। मेरा अभी यही स्ट्रेटेजी चल रहा था, अब मैं इम्प्रूव करूंगा इस पे। तो बस इतना ही रहेगा। So the toppers are in next IAS, I think, since 3 o'clock. Some of them, in fact, came at 11 o'clock. Ritika came at 11 o'clock. So you can understand the fatigue. So we are ending this session. I hope this session you found useful. And many thanks to all the toppers for sharing their strategy and their experiences. So wish you all the best. This is now your second home. Next IAS will be with you till you get your name in the list. Our commitment is not limited to the completion of syllabus. After the syllabus will be completed for the prelims, for the mains, for interview, and even in the second attempt when you want to improve your rank, we will be with you. And those who will be appearing again for their improvement of the rank, we will be providing all possible supports, whatever they are looking. Of course, after the first selection, you become very experienced and you may not require much further support, but whatsoever needed, we are with you, right? Wish you all the best, and once again, thank you very much, and best of luck for you. Thank you.